6. We are doing examples. Please come to page number 15. And whatever you will be writing, whatever I will be doing on the blackboard, you will write it in your textbook. This is to be done in your textbook, children. Now, the town newspaper is published every day. One copy has 12 pages every day. 11,980 copies are printed. How many total pages are printed every day? So, children, we have to find the total pages. We have to find the total pages. Right? So, whenever we have to find the total pages, we have to either add or multiply. Now, it says, the question says, the town newspaper is published every day. One copy has 12 pages. So one copy, excuse me, there are 12 pages in one copy. One copy has how many pages? अच्छा बच्चे ये explanation जो है you can write it in the space given in your textbook. 12 pages. और उन्होंने कितनी कॉपीज प्रिंट होती है every day? So every day 11,980 copies are printed. 11,980 copies are printed every day. Number of copies printed every day. Printed every day. Number of copies are so it is 11,980. So you tell me कि how many pages are printed every day? बच्चे अगर ये एक कॉपी है ना बच्चे, अगर ये एक कॉपी है, this is one copy. Now every copy is having how many pages? 12 pages. तो इसी तरह से पूरे दिन में बच्चे एक कॉपी प्रिंट नहीं होगी ना, एक से ज्यादा कॉपी प्रिंट होगी. So how many copies are printed? It was 11,980. Now they are asking us that the total pages that are printed every day. So total pages printed every day, right? बच्चे ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 12 into 11,980 copies into 12 because each copy is having 12 pages. So ये कितने pages होंगे? जो हम इन्हें multiply करते हैं बच्चे. Now I am doing the calculation part over here, children. 11,980 into 12 करना है बच्चे. तो बच्चे इस जीरो को तो आप पहले भूल जाओ. 12 से मल्टीप्लाई कर दो. 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 19, 2 1 जा 2 3, 2 1 जा 2. Now क्योंकि 1 से मल्टीप्लिकेशन है तो इस नंबर को सेम लिखो. 1198 1198 6 9 plus 8 17 3 plus 1 4 plus 9 13 2 plus 1 3 3 plus 1 4 and यहाँ पे 1 1 4 3 7 6. बच्चे यहाँ पे एक जीरो हमने इग्नोर किया था तो दैट विल पुट ओवर हियर. सो कितनी कॉपीज प्रिंट होंगी? 1 43 7 6 0. कितनी कॉपीज प्रिंट होगी? इतनी पेजेस प्रिंट होंगे एवरी डे. नाउ यू विल मेक एन एडिशन टू द क्वेश्चन. प्लीज मेक एन एडिशन टू द क्वेश्चन. यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन ऐड करेंगे इसमें बच्चे. हाँ जी, एक और क्वेश्चन ऐड करेंगे बच्चे हम यहाँ पे. इज द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग. If the cost of printing one page comes to 0.25 rupees 0.25. Find the total cost of printing all the pages. Find the cost of printing pages in a day. Pages in one day. यानी एक दिन में कितना कॉस्ट इनकर करेगी प्रिंटिंग प्रेस.
हमें पता है एक दिन में बच्चे 143760 पेजेस प्रिंटेड होते हैं. So we will write the answer to the, we will give the solution that every day number of pages printed every day is 143760. Number of pages printed in one day. ये कितने बच्चे? It is 143760. 143760. Now the cost come to as rupees 025. So अगर मैं एक पेज प्रिंट करती हूँ बच्चे, तो उस एक पेज को प्रिंट करने का कॉस्ट है 0.25 रुपीज. So बच्चे you will write cost of printing one page. ये क्या है बच्चे? रुपीज 0.25 यानी 25 पैसे. Now come to this side, children. So what will be the cost of printing? So cost of printing for one day. Cost of printing for one day. ये कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 143760 into 0.25. 0.25. बच्चे सबसे पहले सब लोग ये कॉपी कर लो. If this part is clear to you ना बच्चे, तो ये आप क्लियर कर लो. ये आप प्लीज अंडरस्टैंड दिस एंड राइट इट इन योर टेक्स्ट बुक. जो भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, जो भी आपको कैलकुलेशन दी गई है ना बच्चे, इसे अच्छी तरह से समझ लो एंड राइट इट इन योर टेक्स्ट बुक. इफ यू वांट बच्चे, एक्सप्लेनेशन तो आपको दी गई है, एक्सप्लेनेशन तो आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है. फिर भी इफ यू वांट यू कैन राइट दिस एज अ सॉल्यूशन. जहां पे स्पेस गिवन है आपके टेक्स्ट बुक में, वहां पे लिख लीजिए. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन बच्चे. Try understanding this calculation. The cost of printing for one day will come to as इतनी copies print में 143760 और per page जो cost है that is 0.25. उससे multiply किया, what is the number? Now 0.25 को हम 1/4 भी तो लिख सकते हैं ना बच्चे. 143760 अब into 1/4 करो या फिर into 1/4 कर दो. बात तो एक ही है बच्चे. फिर उसके बाद ऐसा हम डिवाइडिंग है बच्चे. सॉरी चिल्ड्रन, हमें मल्टीप्लाई, हाँ यस वी हैव टू मल्टीप्लाई. तो नाउ दिस कैलकुलेशन जो है हमें 4 से डिवाइड करना है. 143760 डिवाइडेड बाय 4. 4 3s are 12, 2 बचा, 3 आया, 4 5s are 20, 3 बचा, 7 आया बच्चे, 4 9s are 36, कोई बात नहीं, 8 बचा, 16 आया. तो 4 4 का 16 होता है बच्चे, और एक यहाँ पे 0 है तो हम ऊपर 0 लगा देंगे. I hope this is clear to you children. I hope the division is clear to you. The cost of printing for one day comes to as rupees. तो यहाँ पे आप लिखेंगे is equals to rupees 35940. 35940. प्लीज एटलीस्ट आप ये पोर्शन जो है ना बच्चे, ये पोर्शन आप बहुत अच्छी तरह से लिखिए अपनी नोटबुक में, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको एक एडिशनल क्वेश्चन दिया है. इफ द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग वन पेज कम्स टू 0.25, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग पेजेस इन वन डे. फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग पेजेस इन वन डे. तो इसके लिए इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू नो कि एक डे में कितने पेजेस प्रिंटेड होते हैं. वो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया. दैट वाज 143,760. नाउ cost of printing one page is given
वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग 13760 हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर लिया और फिर उसके बाद आंसर निकाल लिया। मैम बच्चे यू हैव टू राइट दिस इन योर टेक्स्ट बुक ओनली। एक एडिशनल क्वेश्चन आप क्वेश्चन के साथ में लिखोगे। ये जो क्वेश्चन मैम ने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवाया है ना बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ये आप ऑन पेज नंबर 15 पे, पेज नंबर 15 पे जो एग्जाम्पल 3 का क्वेश्चन है उसी के साथ में लिख लो बच्चे, और इसका जो आंसर है वो आप पेज नंबर 16 पे, यहाँ पे बच्चे काफी स्पेस रहता है आपके पास टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन, एग्जाम्पल नंबर 3 मेंशन करके उसका जो एडिशनल क्वेश्चन है उसका आंसर मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे कर लीजिए। जो पढ़ा है उसका पेज नंबर क्या है बुक का? It is on page number 15. Now, let us discuss question number, example number 4, children. Let us discuss example number 4. बच्चे सभी लोगों ने लिख दिया? Are you done with this question? Have you written the answer to the question, additional question that I have given you? Please mention in the comment section, are you done? अगर आप डन हो तो मैं ये वाला पोर्शन रब कर दूंगी। If you are done writing this in your notebook, I will rub this portion बच्चे। Okay, most of you have done. क्लास है Now we are discussing example number 4, children. I am discussing example number 4, children. Okay. The number of sheets of paper available for making notebooks is 75,000. Each sheet makes 8 pages of a notebook. Each notebook contains 200 pages. How many notebooks can be made from a paper available? तो बच्चे हम एक इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारे पास में अगर एक शीट है तो उससे मैं कितने पेजेस बना सकती हूँ, उससे मैं कितने पेजेस बना सकती हूँ। आई कैन मेक 8 पेजेस ऑफ द नोटबुक। मुझे क्या करना है पेज नंबर एट द एंड? नहीं बच्चे, यू डू नॉट हैव टू राइट एनीथिंग इन योर नोटबुक। बच्चे जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है वही डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर मैं आपको समझा रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे, अगर आपको नहीं समझ में आता तो यू कैन आस्क मी अगेन। जबकि जो नोट्स है, जो आपके जो टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेनेशन दी गई है दैट इज सफिशिएंट इनफ, पर फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको कोई डाउट अगर हो तो आप पूछ सको एंड you are able to connect with what is given in the textbook. Now children, so they have given us कि 8 pages of a notebook can be made from one sheet. तो मैंने अगर 8 शीट ली तो मैं 8 पेजेस बना पाऊंगी। अगर मैंने 100 शीट्स ली तो मैं 100 into 8 पेजेस बना पाऊंगी। तो मेरे पास में सारे पेजेस इकट्ठे हो गए, उसके बाद में मैं क्या करूंगी, नोटबुक बनाऊंगी।
तो सबसे पहले लेट अस फाइंड कि हमारे पास में टोटल शीट्स कितनी है। तो हमारे पास में जो शीट्स अवेलेबल है ना बच्चे, शीट्स अवेलेबल थी, हमारे पास में जो शीट्स अवेलेबल है बच्चे वो है 75,000। बच्चे वो है मैम एग्जैक्ट टू द कैमरा। मैम मैम एक्टर एग्जैक्ट टू द कैमरा ही। ओके बच्चे, एक मिनट। हाँ जी बच्चे, नाउ आर यू एबल टू सी? यस। तो बच्चे हमारे पास टोटल शीट 75,000 अवेलेबल है एंड ईच शीट मेक्स 8 पेजेस। ईच शीट मेक्स हाउ मेनी पेजेस बच्चे? 8 पेजेस, राइट। अब मुझे बताओ कि 75,000 शीट्स से 75,000 शीट्स जो है उसे हम कितने पेजेस बना पाएंगे बच्चे? इट विल बी 8 5 का 40, 8 7 का 56, 60 आ गया बच्चे। और ये जो 3 जीरो जो हमने इग्नोर किए थे ये हम यहाँ पे लिख देंगे। तो बच्चे हमारे पास में टोटल पेजेस कितने हो गए? वी हैव 6 लाख पेजेस। वी हैव 6 लाख पेजेस। नाउ हमारे पास में बहुत सारे पेजेस इकट्ठे हो गए, लेकिन हमें तो नोटबुक बनानी है। नोटबुक में कितने पेजेस लगेंगे? ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। नंबर ऑफ पेजेस इन वन नोटबुक, नंबर ऑफ पेजेस इन वन नोटबुक। एक नोटबुक में कितने बच्चे? 200 पेज यूज हो जाते हैं बच्चे, 200 पेज यूज हो जाते हैं। एक नोटबुक 200 पेजेस कंज्यूम कर लेती है। तो मुझे ये बताओ कि कितनी नोटबुक बना पाएंगे इसमें? हर नोटबुक में 200 पेजेस होंगे 6 लाख पेजेस से। सो दैट विल बी 6 lakh divided by 200 पेजेस। 6 लाख पेजेस, सॉरी 6 लाख पेजेस को हमने क्या किया? 200 पेजेस से डिवाइड किया, तब जाकर हमें नंबर ऑफ नोटबुक्स मिल जाएगा। और नंबर ऑफ नोटबुक्स मिलेंगे, राइट। तो बच्चे यहाँ से 2 जीरो कैंसिल किए मैंने, 2 3 का 6, तो मेरे को पता चला कि 3000 नोटबुक्स। 2 मिनट के लिए साइड हो जाइए। I am able to make 3,000 notebooks from 6 2 lakh मिनट के from लिए 6 साइड हो जाइए। lakh। बच्चे समझ में आया सबको? Is there anyone who has a doubt? यस मैम। Please mop it नो up. मैम आई हैव नो डाउट। No ma'am, no doubt. Okay. Very good. नो मैम। Very good बच्चे. That's really nice. मैम आई हैव नो डाउट। Your answers that you are able to understand in one go. Now listen, बच्चे, all the examples of this topic are discussed with you. Now we will start with the exercise 1.2. बच्चे, exercise 1.2 you need to do in your classwork notebook. Please, okay बच्चे? This needs to be done in your classwork notebook. We are doing exercise 1.2. ठीक है बच्चे? Now coming to the first question of the exercise. A book exhibition was held for 4 days. The number of tickets sold is at the counter on the first, second, third, and final day, respectively. Find the total number of tickets sold for all 4 days. Now, children, अगर हमें पता करना है फोर्थ डे की बात पता करना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे के बाद कितनी टिकट सोल्ड आउट हुई है, we have to add all the tickets sold. So you will write the answer. बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप स्पेस छोड़ दो बच्चे, नहीं तो अगर आपको लिखना नहीं है that also is okay with me. You just have to mention exercise 1.2 question number 1 solution. Question number 1 the solution you will write. What is the solution? Number of tickets sold. Number of tickets sold. Number of tickets sold. Number of tickets sold on first day. बच्चे, number of tickets sold on the first day. वो कितनी थी बच्चे? According to the question it was 1094. 1094. Now number of tickets sold. Number of tickets sold on the second day. Read the question बच्चे. How many were there? 1812. 1812. Now third day 2050. Third day 2050.
2 7 5 1 now fourth game कितने से हुई बच्चे was 2 7 5 1 now अभी बच्चे ये बताओ मुझे how many tickets were sold how many total tickets were sold मैम आप कैमरा को थोड़ा राइट साइड में कर दो। total tickets मैम कैमरा अरे को थोड़ा मैम अभी राइट लिख रही साइड है, में तुम्हें कर समझ दो। में नहीं आ रही क्या? ओके ओके बच्चे कैमरा अभी ठीक है बच्चे ओके मैम ओके मैम ओके मैम। 4 plus 2 6 6 plus 1 7 9 plus 1 10 10 plus 5 15 15 plus 5 20 2 taken forward 2 plus 8 10 10 plus 7 17 1 taken forward 1 plus 1 2 2 plus 1 3 3 plus 2 5 5 plus 2 7 so total is 707 tickets were sold when we add the tickets that were sold on all 4 days बच्चे इस तरह से आप कंप्लीट कर दीजिएगा इसको this is your answer please write this in your classwork notebook please write this in your classwork notebook Please write done in the comment section once you are done writing this answer in your notebook. कैमरा एडजस्ट कर लीजिए। कैमरा बच्चे मैंने एडजस्ट नहीं किया है। मैम इधर की साइड करा है, अब आप इधर करोगे ना, इधर लिखोगे ना तो इसलिए नहीं दिखेगा। हाँ बच्चे ओके आर यू डन एवरीवन? Okay, now coming to the next question, children. Now coming to the next question. What does the second question say? Shekhar is famous cricket player. He has so far scored 6980 runs in the test matches. He wishes to complete 10,000 runs. बच्चे आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है नोटबुक में जस्ट मेंशन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन जब भी आपको रेफर करना हो आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए नोटबुक खोलिए you will be able to do this will reduce your work as well as it will be easy for you why do you have to write the question when it is already there in the textbook now बच्चे शेखर is a famous cricket player शेखर is a famous क्रिकेट प्लेयर एंड ही वांट्स उसने एक टारगेट बनाया बच्चे को मुझे 10,000 रन स्कोर करने पर उसने अभी तक कितने रन स्कोर किए हैं 6980 रन स्कोर किए हैं तो वो पूछ रहे हैं बच्चे हमसे हाउ मेनी रन्स डज ही नीड उसे कितने और रन्स चाहिए सो नाउ नंबर ऑफ रन्स बच्चे यहां पे दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 नंबर ऑफ रन्स Shekhar wants to make how many runs he wants to make बच्चे he wants to make 10,000 runs he wishes to make 10,000 runs now number of runs that he has so far scored number of runs already scored number of runs already scored number of runs already scored they were how many 6980 so बच्चे how many more runs he needs to score to get the target of 10,000 more runs to be scored more runs to be scored कितने और रन स्कोर करने पड़ेंगे बच्चे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चे माइनस करेंगे हम इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि 6980 में से और कितने स्कोर करने हैं ताकि 10,000 में पहुंच जाए 0 माइनस 0 0 बच्चे इसको 0 बनाओगे फिर ये 10 बनेगा ये 9 बनेगा
फिर ये 9 बनेगा, फिर ये 9 बनेगा। 10 minus 8 2, 9 minus 9 0, 9 minus 6 3। तो बच्चे 3020 रन और स्कोर करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट ऑफ 10,000 रन्स। Now coming to question number 3, children. Bache, are you done question number 2? Bache, are you done question number 2? No, ma'am. No. Okay, take some time and complete it, bache. Done, ma'am. Done? Okay. Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. Very good, bache, very good. I'll be doing question number 3 over here. Okay, In an election, the successful candidate. बच्चे कभी भी election होता है तो there will be one person who will be winning the election and the other person will lose. So if there are two candidates, one person will win, second person will lose. So successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival scored 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? तो successful candidate जो था बच्चे उसने कितने extra run score किए? Margin का मतलब वही होता है बच्चे extra कितना है? तो कितने extra runs उसने score किए जिससे उसकी win हुई? तो बच्चे you have to find that. So you will write number of runs. Winner score. The winner score. So how many runs did he score? Bache, it was 5,77,500. Now, from number of runs, the loser scored. Number of runs, loser scored. The loser scored. है ना बच्चे? तो उसने कितना किया था बच्चे? उसने स्कोर किया था 3,48,700. 3,48,700. ठीक है बच्चे, हमें तो मार्जिन निकालनी है. तो हम क्या करेंगे बच्चे? इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे. 0 में से 0 गए, 2 0 लगा दिया हमने. 7 का 6 बनाया, 15. 15 minus 7, 7 to the 14, 7 8. 16 now बच्चे ये 6 में से 8 नहीं जा सकता, इसको हमने अगेन 6 बनाया. 16 minus 8 8. 6 minus 4 2. 5 minus 3 2. So this was the difference. इतनी मार्जिन रही बच्चे, दोनों के बीच में. जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसने कितने एक्स्ट्रा रन स्कोर किए? उसने 2,28,800 एक्स्ट्रा रन स्कोर किए ताकि उसकी जीत हो सके, ताकि winning the election, ताकि we could win the election. I hope this is clear to you children. Very good बच्चे. Absolutely right. राइट है, चलिए अब क्या करना है? Now बच्चे, are you done writing the answer? Please mention in the comment section. Yes, ma'am.
Very good, बच्चे. You are Done, doing ma'am. understand in one go Done, ma'am. only. You are Done, so ma'am. sharp at doing maths. I am so fond of you children. You are very good at reading. You are very good at mathematics. Now children, let us move to the next question. हम question number 4 करेंगे अभी बच्चे. तो I have to shift the camera बच्चे. Now, now children, coming to the fourth question. Let me rub it. Now, Kirti Bookstore sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June and the books worth rupees 4,70,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? तो बच्चे यहाँ पे हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप तो पहले ये बताओ कि कौन से वीक में which week had the higher sales, यानी 2 वीक्स की अगर हम कंपैरिजन करें तो किसमें सबसे ज्यादा हायर सेल्स हुई है, राइट? दूसरा क्वेश्चन ये बोला गया है कि अगर किसी में ज्यादा हुई है तो बाय हाउ मच तो तभी निकलेगा बच्चे जब हम उन दोनों का डिफरेंस लेंगे. ठीक है बच्चे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सेल्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. सेल्स इन फर्स्ट वीक ऑफ जून. इट वाज 2,85,000. ओके सॉरी बच्चे, पहले आप ये काम करो बच्चे, से सेकंड को ना बच्चे इस फर्स्ट को सेकंड करना है आपने, बिकॉज सेकंड वीक में ज्यादा सेल्स हुई है. हाउ मच देवर? 4,768,000. 4,768,000. नाउ सेल्स इन फर्स्ट वीक ऑफ जून. हाउ मच देवर? 2,85,891. 2,85,891. इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं बच्चे हम लोग को. तो कितना सेल्स एंड माइट हाउ मच सेल्स में एक्स्ट्रा सेल्स ऑफ सेकंड वीक है ना बच्चे. सेकंड वीक में ज्यादा हुई है तो कितनी एक्स्ट्रा हुई है बच्चे, वो हम डिफरेंस निकालेंगे. 8 minus 1 7, 7 का 6 बनाया. 16 minus 9 gives me 7. Now 4 को हमने 3 बनाया. 10 9 10 9 इसको हमने 16 बनाया, फिर 8 आया यहाँ पे. 9 minus 5 4, 9 minus 8 1, 3 minus 2 1. So these were the extra sales in the second week. Now you will also give you will write that the number of the sales in the second week. Sales of second week were Not clear. Ma'am, board is always clear. sales of first week मैम ये वाला हम स्क्रीन फोटो ले लें क्या? जून. हाँ बच्चे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पर आपको अपनी नोटबुक पे लिखना पड़ेगा ये. यस मैम, मैं स्क्रीन फोटो लेती हूँ काम पर. एक मिनट बच्चे. मैम प्लीज एडजस्ट. बच्चे ये कैमरा तो ऑलरेडी एडजस्टेड है, अच्छी तरह से दिख रहा है बच्चे. यस मैम. ठीक है बच्चे? ओके मैम. ओके मैम. Now children, the time is over or we have to end this session over here. मैम क्या आप कैमरा को लेफ्ट साइड कर दोगे?
बच्चे जहाँ पे आंसर है वहीं पे ही मैं आपको कौन सा आंसर लिखना है बच्चे? मैम बॉडी दिया है, मैम थर्ड का। इसलिए मैम मत करना। एक मिनट बच्चे मुझे मैम थर्ड का आंसर देखना है मुझे। मैम मैम आप वो करना है, आपकी क्लास बहुत अच्छे से पढ़ाती है। बच्चे दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी लिखना है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट राइट नाउ। मैं कैमरा जो है उसे एडजस्ट कर मैम देती हूँ। मैंने लिया है। ओके मैम। बच्चे आर यू डन? कोई ऐसा बच्चा है जिसने क्वेश्चन नंबर 2 3 नहीं लिखा है? मैम मैं। कोई ऐसा बच्चा है जिसने क्वेश्चन नंबर 2 3 नहीं लिखा है? प्लीज टेल मी। मैं Okay, then I assume that everyone of you have read all the questions. Let me take your attendance now. मैम। No, ma'am. You want to write question number 2 and 3, or you want to write question number 4? मैम मैम क्वेश्चन नंबर 3 का करना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपको? ठीक यस है मैम। बच्चे, एडजस्ट कर रही हूँ कैमरा को, रुक जाइए। अभी आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चे? यस मैम। डन मैम 2 और 3। ओके। मैम और ऐसे ही रखना क्योंकि ऐसे ही क्लियर दिख रहा है, पूरा अच्छे से दिख अच्छा ठीक है बच्चे, मैं ऐसे ही लिख दूंगी। हमको बात का कैंसर होना पड़ता। बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि क्लासरूम में तो एडेड है, पर वो सेशन अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज आस्क ऑल योर फ्रेंड्स टू अटेंड दिस सेशन इफ यू थिंक दैट दिस सेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू आर एबल टू मैम अंडरस्टैंड इनकी ऑल द क्वेश्चंस दैट अटेंडेंस आर भी नहीं बीइंग लगती है एक्सप्लेन्ड। फिर। प्लीज बच्चे मैम ड्रॉप अ इनकी मैसेज टू योर फ्रेंड्स टू जॉइन द सेशन ऑन टाइम। ओके अटेंडेंस भी लगती नहीं है फिर। बच्चे मैम डन। your attendance is being taken and it is marked after every session। ठीक है बच्चे, आप अटेंडेंस की चिंता मत करो बच्चे। बच्चों सब लोगों ने लिख लिया? सब लोगों यस ने? मैम। बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है ना? नो मैम। शाबाश। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नो मैम। Thank you children for joining this session. I hope this session was थैंक यू, useful हैव to अ you. नाइस डे मैम। Bye bye बच्चे। बाय मैम। Bye bye, take मैम care। मैथ्स की क्लास बहुत अच्छे Bye, से ma'am. पढ़ाती Thank you so Thank you, much। ma'am, for teaching I us. love you all. You are so nice. You're so cooperative, बच्चे. You're so enthusiastic, and you have so good at mathematics. है। ओके मैम। Okay, bye bye. बाय मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम फॉर टीचिंग अस। थैंक यू।